माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन में पधार रही हैं। सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अब सदन के नवनिर्वाचित सदस्य अपनी शपथ लेंगे। अब मैं माननीय सदस्य श्री तेजस शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं तेजस शर्मा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब मैं श्री युग सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे शपथ ग्रहण करें। मैं युग सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज सदन में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। सभी सदस्य बारी-बारी से अपने पक्ष रखेंगे। अंत में मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। अब मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगी कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का प्रस्ताव पेश करें। Respected Speaker Ma'am, I would like to ask for the consideration of this House to present a new bill in the Parliament. Permission granted. Respected Speaker Ma'am, today I would like to introduce a bill of great national importance into this House, which is the Uniform Civil Code 2022. And I would like for all of the members to at least listen for the greater good. It is high time when we start to walk on the path laid down by our predecessors by stating in the Article 44 of the Constitution that the state shall strive to have a uniform civil code for all of its citizens. With this bill, all persons in the country will be governed by a single secular code of laws, irrespective of their religion, ethnicity, gender, or linguistic affiliations. Speaker Ma'am, this code will include acts for matters relating to marriage, adoption, divorce, guardianship, and succession. Under this bill, the following acts will be amended: Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Minority and Guardianship Act 1956, Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937, Indian Christian Marriage Act 1872, Indian Divorce Act 1869, and all the acts relating to giving privileges to people for marriage, adoption, succession, and inheritance. This bill will be based on the model of Goa Civil Code, which is derived from the Portuguese Civil Code of 1867, but not entirely dependent on it, and will be shaped according to the nation's needs. This bill will carve out different personal laws based on the uniform principles of equality, liberty, and justice. This bill will be known as the Uniform Civil Code
and the Article 44 of the Constitution will be converted into a new code as present other existing codes. All the pre-existing personal laws will wash away their power of controlling above mentioned terms and will follow uniform terms and definitions as per the Act. There will be abolition of all forms of marriage except monogamy. Both son and daughter will have equal share in the property of their parents irrespective of their religion, caste, etc. Jai Hind, Jai Bharat. अब सत्ता पक्ष के सदस्य बारी-बारी से अपने विचार रखेंगे। मैं माननीय सुषमा जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने विचार रखें। Thank you, Speaker Ma'am, for giving me this opportunity to share my views on UCC bill. As in school, students are given same uniform so that they could be treated equally, irrespective of their caste, color, religion, etc. In the same manner, our country needs uniform civil code so that every individual could be treated equally. UCC is an attempt to waive personal laws and to bring a common law for all. One law should be there which is applicable to all, which would be different from public law and would deal with marriage, divorce, maintenance and adoption. The need of this code is to secure justice and equality for all the citizens of India. As this code is applicable to the citizen of India, irrespective of caste, religion and gender, means all citizens of India are treated equally. But in case of marriage, divorce, maintenance, adoption, the effect has not been forced. The personal laws in India vary widely in their sources and traditions, which makes the difficulty and resist in bringing people up together for unifying them in the nation, where laws of different religion govern them. An extra burden is put on the judiciary when different communities are governed by different laws, which is the main cause of delaying justice. Having a uniform civil code will help to solve the case quickly and provide justice, and also help simplifying a lot of techniques that make confusion which are attached to present scenario, thus addressing the loopholes in pre-existing personal laws and giving it in a new way to deal with the advanced crimes. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय ईशिका जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। Thank you, Honorable Speaker. I am the representative of Shimla constituency and I want to share in the favor of UCC bill. मैं यहाँ पर 1985 शाहबानो केस के बारे में बताना चाहूँगी, जिससे कि आप सभी शायद परिचित ही होंगे। शाहबानो बेगम एक मुस्लिम लेडी थी, जिन्हें जस्टिस नहीं मिल पाया था only because of lack of uniformity in the laws. उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें डाइवोर्स दिया and refused her regular maintenance. This form of unilateral divorce is practiced under the Muslim personal laws. In 1980, when Shah Banu went in High Court of Madhya Pradesh to claim her maintenance under the provision of Section 125 of CRPC, the Code of Criminal Procedure, which is applicable to each and every citizen regardless of their caste, creed, gender, religion, etc., she was granted maintenance. But as according to the Muslim personal laws, Ahmad Khan said in Supreme Court that he had fulfilled all his obligations under Muslim law. This case was then transferred to 5 judges bench in which Y. Chandrachud, CJI, Chief Justice of India, and 4 more judges were present there. In 1985, इनके द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता के बारे में भी अपनी बात रखी। In 1986, एक एक्ट पास हुआ था in the Parliament known as the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, which made Section 125 inapplicable on Muslim women. Speaker ma'am, I want to ask why there is such type of discrimination where Muslim women are not provided with maintenance whereas the Hindu women are. जब एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? जब सभी लोग समान हैं तो समान कानून क्यों नहीं? I support one nation one law. Thank you. धन्यवाद महोदया। अब मैं माननीय तपेश जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे इस पूजनीय सभा में बोलने का मौका दिया। मैं दिल्ली का MP यहाँ जो कुछ भी कहूँगा इस सभा का मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहूँगा। भारत जैसे देश में
यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त से सख्त ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्युलरिज्म को सही से समझना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी रिलीजन में इंटरफेयर ना करे, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार सेक्युलरिज्म का सबसे सही मतलब है सभी के लिए एक कानून हो और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर सभी के लिए एक कानून होगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको इक्वली ट्रीट किया जा सकेगा। जैसे इस्लाम में एक आदमी एक से ज़्यादा बार शादी कर सकता है, पर वुमेन ऐसा नहीं कर सकती, which shows injustice to women and their fundamental rights are being violated. स्पीकर मैडम, मैरिज, प्रॉपर्टी, डाइवर्स, अगर इन तीनों के लिए एक कानून होगा तो सभी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और जुडिशरी भी अपना काम सही से कर पाएगी। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, पर बड़े दुख की बात है इंसानियत का गला घोट लेने वाली प्रथाएं आज भी हमारे देश में पैर पसारे हुए हैं और इन प्रथाओं का कोई भी लॉजिक नहीं होता, चाहे वो इस्लाम का प्रोगेमी हो, पॉलीगेमी हो या फिर सती प्रथा हिंदू में हो। ये सारी प्रथाएं ह्यूमन राइट्स का पूरा वायलेशन है। जुडिशरी में भी ये एक कानून ना होने के कारण इतना बर्डन है। ई कोर्ट की रिपोर्ट से हमें अच्छे से पता लगता है। ई कोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि 40 लाख से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। अगर पूरे देश में एक कानून होगा तो सभी जुडिशरी पर बर्डन कम होगा, कंफ्यूजन कम होगी और सबको इक्वली सर्व किया जा सकेगा। इसीलिए मेरा तो यही मत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब अगर और देरी हुई तो ये देश तरक्की नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय किताब जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। लाख करेंगे तेरा विरोध पर कदम पीछे ना खींचना, लाख करेंगे तेरा विरोध पर कदम पीछे ना खींचना, बस तुझमें करोड़ों दिलों पर राज करने का हुनर चाहिए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं गांधीनगर सांसद से निर्वाचित हुआ हूँ और मैं इस बिल पर यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इससे हमारे देश में सभी रिलीजन और लोगों में समानता बढ़ेगी। जो पहले से शोषित और वंचित हैं उन्हें आगे आने का अवसर मिलेगा और इस बिल से जुडिशियल वर्क में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वह खत्म हो जाएगी और इस समान नागरिक संहिता के आने से किसी का कोई भी राइट्स वायलेट नहीं होगा। जिस देश में धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून हो तो उसे संविधान नहीं कह सकते, उसे बहुविधान कहते हैं। अगर देश में वन नेशन वन पीनल कोड हो सकता है तो वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं, और अगर देश सेकुलर है तो सबके लिए अलग कानून क्यों। आज के आधुनिक काल में दुनिया का वेल नोन कोड फ्रांस का माना जाता है। नेपोलियन सिविल कोड 1804 में आया था। इसने ग्राहक कानून और मौजूदा कानून दोनों को हटा दिया और एक विशाल संपत्ति को कवर किया। कम्युनिटीज, यूसुफ एक्ट, सुख भोग, उत्तराधिकार, उपहार, अनुबंध और अर्थ अनुबंध जैसे आदि कानूनों को लागू किया। फ्रांसीसी कोड ने विशेषाधिकार, समानता, रीति रिवाजों और कानूनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन की मांग की। और अब ये लोग हमें बताएंगे कि कौन सा बिल आना चाहिए या कौन सा नहीं, या वो लोग हमें बताएंगे जो 6 साल LLB करके जुडिशरी का एग्जाम देकर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए। शाह बानू केस 1985, सरला मुद्गल केस 1995, जॉन बलवत्तम केस 2003, शायरो बानू केस 2017। हैरत की बात तो ये है कि इतने सारे केस होने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है। पर्सनल लॉ की जरूरत आज़ादी से पहले रही है। अब 21वीं सदी में समान नागरिक संहिता जरूरी है। यही प्रगति की सूचक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय भूपेश्वर जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। Thank you, Speaker Ma'am, for giving me this opportunity to stand in front of you all and share my views on UCC. The principle of UCC essentially involves the question of secularism. Secularism is a principle which needs to be analyzed at great length.
However, due to the different family laws, they are treated differently based on their religion. In my opinion, to some extent, this goes against the underlying principles of the Indian Constitution. Having a uniform civil code will mean that all these different laws will be replaced by a new law which will be applicable for all irrespective of their religion. The country has already suffered a lot in the absence of a uniform civil code for all. It is rather a pity that the longest and most elaborate written constitution in the history of mankind, the Indian Constitution, is responsible for erosion in society. The society has been fragmented in the names of religions, sections and sex. Even at present, in India, there are different laws governing rights related to personal matters or laws like marriage, divorce, maintenance, adoption and inheritance. For different communities in India, most family law is determined by the religion of the parties concerned. Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists come under Hindu law, where Buddhists and Christians have their own law like Sharia for Muslims. Also, only Hindus can adopt a child in the sense of affiliating him or her legally. Others cannot adopt even if they want to do so. That's why it is to say that each law suffers from some deficiencies and identical matters show difference. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय तनिषा जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। Thank you, Honorable Speaker Ma'am, for providing me this opportunity to share my views in favor of Uniform Civil Code. On March 24, the Uttarakhand Cabinet formed a committee of experts for the implementation of Uniform Civil Code (UCC) in the state. The UCC, as envisioned under Article 44 of the Constitution, provides the formulation of one law which is applicable to all religions in matters related to marriage, divorce, inheritance and adoption. Many feel a common civil code is crucial to reduce conflicts and contradictions from various personal laws. If UCC is promulgated in Uttarakhand, the state will be the first one to do so. A version of UCC in Goa is under Section 5, Article 1 in Goa, Daman and Diu Administration Act 1962. Under the Portuguese Civil Code 1867, this code was retained even after Goa was annexed to Indian Union 1961. The best chance for implementing Uniform Civil Code was after Shah Bano case verdict. In 1978, a 62-year-old Muslim woman, Shah Bano, filed a petition in court demanding for the maintenance for herself and her 5 children from her husband, M.A. Khan. The section puts legal obligation on a man to provide for his wife during marriage and after divorce too, if she cannot fend for herself. So like Shah Bano, many other intra-faith marital victims cannot be protected even today in India. So I thank to the multi-judiciary system for the personal laws. At last, I just only want to say that the idea of one nation, one law will serve the citizens and ensure the goal of absolute social justice. Undoubtedly, it is high time to achieve political consensus on UCC without delay. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय गरिमा जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय जो आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं इस बिल पर कहना चाहूँगी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आलोचना करने वाले लोग यह भी कहते हैं कि यह कानून थोपने जैसा है और लोकतांत्रिक तरीका नहीं। हालांकि सही पक्ष यह है कि लोकतंत्र
में स्त्री और पुरुष दोनों को शादी आदि के समान अधिकार मिलने चाहिए, जो कि सिर्फ कानून ही दिला सकता है। साफ तौर पर कहें तो यूसीसी से कोई नुकसान नहीं है। यह आपको किसी धर्म को मानने या ना मानने पर कोई रोक टोक नहीं लगाता। आप चाहे हिंदू धर्म के तरीके से शादी करें या मुस्लिम धर्म के तरीके से, यूसीसी आपको बस वह अधिकार दिलाएगा जो एक भारतीय नागरिक होते हुए आपके पास होने चाहिए। हम सब इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर इसे समाज के नजरिए से देखा जाए तो यह भारतीय नागरिकों में समानता, जागरूकता, कानून के लिए सम्मान और उच्च उदारवाद लेकर आएगा। Now the question arises, why we need UCC? So mainly it provides women the right to equality and justice in the courts of law, irrespective of their caste, gender and other circumstances. And it also leads to discrimination because of personal laws in two levels. Firstly, between people of different religions, and secondly, between two genders. It also faces some circumstances and some challenges also, like constitutional challenge, social and political challenge. In social challenge, minorities feel fear that on the name of uniformity, the culture of majority is being imposed over them. Secondly, India is a nation with large cultural diversity, and bringing uniformity is a big challenge. स्पीकर मैम, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यदि किसी को यह कानून अब भी समाज के और उसके नागरिकों के विरुद्ध लगता है, तो यह कानून और भारत की जनता कभी कल्याण नहीं पा सकती। और अंत में मैं यह भी कहूंगी कि जिस धरती पर स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, वहां पर ईश्वर भी वास नहीं करते। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय पीयूष जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार। मेरा न धर्म है, मेरा न मर्म है, मेरा तो बस कर्म है। जाने विश्व के माथे की बिंदी पर क्यों आज 75 वर्ष में कोरोना के बाद भी अत्याचार होते हैं। मैं बैठा हूँ सदन में, देता हूँ देश का एक महान इम्तिहान जिसका यूसीसी है नाम। Excellency, taking the oath of the supreme document of India, the Constitution of India, I want to put my views on the UCC bill. These are not my personal views, but the views of the 70,000 Lakshadweep Islanders. It isn't the first time that such a kind of bill, such a kind of draft is presented into the context, but fourth or fifth time. Brethren, Britishers tried to form a UCC under the Lex Loci report in October 1840, emphasized the importance and necessity of uniformity in codification of law. But due to protest of Orthodox, Hindus and Muslims, this bill wasn't passed. Excellency, it is also known as Saman Nagrik Sanhita, a proposal in India to formulate and implement personal laws of citizens which apply on all citizens equally regardless of their religion, sex and many other things. Currently, personal laws of various communities are governed by the religious scriptures. Excellency, my counterparts try to say that this bill is discriminatory, but not as this draft creates hope for LGBTIQ+ community, as it doesn't differentiate between individuals. Same-sex marriage aren't recognized legally by any applicable law in India. Excellency, I want to say to hello the goals of Parliament that the British feared opposition from community leaders after framing personal laws for Hindus and Muslims to interfere with domestic architecture. There was a critical condition at the time of independence, so many leaders were fearful to present UCC at that time in the Parliament. So it is the right time to present the UCC in the Parliament. The Hindu laws got preference because of their relative ease in implementation. At that time, the Sharia Act of 1937 was passed, which stipulated that Indian Muslims would be governed by Islamic laws on marriage, divorce, maintenance, adoption, succession and inheritance. Excellency, my worthy opponents or members of opposition and my friends, the principle of uniformity are also mentioned in the Shastra of Hindus, where caste system is not prevalent and only monogamy is allowed. Excellency, in Mrs. Shah Bano in 1985 and Mrs. Sajara Bano in 2017 and many other cases that were presented and explained by my worthy friends, that these women were not able to get justice and need to went Supreme Court due to lack of this bill. Despite of being ordered by Supreme Court, some people are not in its favor, as I have seen in the media reports.
Members, an independent Muslim MP proposed the Muslim Women Protection of Rights of Diverse Bill and Rajiv Gandhi supported it. It made section 125 of CRPC applicable to Muslim women. Now, I request all MPs to please note the word uniform should not be confused with common, because uniform means all communities must be governed by uniform principles. Modernization and humanization of each personal law will take place. Excellency, I want to explain to the Parliament through your chair that not a common law but a personal law based on principles of equality, liberty and justice will prevail. So it is the right time to proliferate country with the UCC as per stated in the Article 44. So this was as what I was representing the views of Lakshadweep Islanders. Thank you and have a nice day. धन्यवाद महोदय। अब विपक्ष के सदस्य संसद पटल पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं माननीय निधि चौधरी जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैं अपने विचार इस बिल के विपक्ष में रखना चाहूंगी। इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी इन एथनिसिटी, caste, religion, etc. Hence, it is practically not possible to come up with this uniform system of laws, especially in marriage due to cultural diversity, and it is not possible to convince every community to replace their age-old tradition with new laws. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि the state should not interfere in personal matters as our constitution provides for the right to freedom of one's choice. UCC would correct that right. UCC is considered by religious minority as an encroachment on their rights. They fear that traditional religious practice will be replaced by the new laws. UCC in its true spirit must be created by borrowing from various special laws, making gradual changes in it, using judicial pronouncements, assuring gender equality, and adopting expensive interpretation on marriage, maintenance, adoption and succession. There are daunting tasks on human resource wise, so the government should be sensitive and unbiased at each stage while dealing with minorities and majority communities, otherwise it will lead to communal violence. At last, I want to say that there are already many controversies in our country over beef ban, sacrification of school and college circular, love jihad, etc. At this time, the introduction of UCC would only make things more worse. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुशाग्र जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। महोदय, कि आपने मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत यानी ऐसे देश में जिसकी पहचान उसकी डाइवर्सिटी से होती है में लागू करना सही है भी या नहीं? यदि सही है भी तो क्या यही सबसे उचित समय है इसको लागू करने का? लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को कहा कि यूसीसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समान नागरिक संहिता न तो वांछनीय और न ही आवश्यक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। दूसरी बात, मैं भी सत्ता पक्ष के वक्ताओं के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनमें मैंने एक बात समान पाई कि ये अधिकतर वक्ता ये कह रहे थे कि इससे भारतीय समाज में होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी या कहीं एक रूपता आ जाएगी। मैं इन बुद्धिजीवियों को बताना चाहूँगा, अभी बुद्धिजीवी है या बुद्धूजीवी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं सत्ता पक्ष के वक्ताओं को ये कहना चाहूँगा कि टीवी से लेकर ट्विटर तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, गाँव से लेकर शहर तक, पोलराइजेशन का जितना जहर आज भारतीय समाज में बुलाया पिछले 70 सालों में नहीं बुलाया, उसके ऊपर ओनर किलिंग्स, खाप पंचायत पॉलिटिक्स और कास्ट बेस्ड असोल्ट जैसे मुद्दे हर रोज खबरों में रहते हैं। तीसरी बात, यदि यह बिल को कानून का दर्जा यानी लॉ का दर्जा दे भी दिया जाता है तो क्या इसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लागू कर पाना इतने डाइवर्स कंट्री में पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं? नानी पालकीवाला, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि लॉज आर नाइदर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, यानी भारत में न तो कानूनों का सम्मान किया जाता है और न ही उन्हें लागू किया जाता है, न तो उनको लागू किया जाता है और न ही उनका सम्मान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विडो मैरिज एक्ट 1856 एक ऐसा कानून जो कि आज से करीब
170 सालों पहले भारत में लागू हुआ था, लेकिन आज भी मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर 7 फेरे लेने के बाद यदि पति गुजर जाए तो महिला को दोबारा शादी तक नहीं करने दी जाती। ऐसे में एक ऐसे कानून को लागू करना जिसका इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा मुश्किल होगा, सही है या गलत ऊपर वाला ही जाने। धन्यवाद। धन्यवाद महात्मा। अब मैं माननीय तनुजी से निवेदन करूंगी कि अपने विचार रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सबसे पहले तो मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगी कि वे अपने प्रस्ताव की शुरुआत कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि प्रस्ताव पंक्तियों से नहीं तथ्यों से पारित करवाए जाते हैं। अब अपने विचार रखना चाहूंगी। भारत विभिन्नताओं का देश है, जहाँ हर क्षेत्र में भाषा, वेशभूषा, धर्म, विश्वास बदलते रहते हैं और हर मजहब की अपनी परंपराएं, कानून और नियम हैं, जो सदियों पहले इस धर्म के लोगों द्वारा उनके हित में निर्मित हैं, जो उस धर्म के प्रति उनके लोगों की आस्थाओं को दर्शाते हैं। माननीय महोदय, सरकार इन सब को हटाकर सिंगल लॉ लाना चाहती है। सरकार सिंगल लॉ से न केवल लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करेगी, बल्कि सदियों से बनी उनकी अटूट परंपराओं और आस्थाओं का भी उल्लंघन करेगी। माननीय महोदय, साथ ही साथ सरकार लोगों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का भी उल्लंघन करेगी। सत्ता पक्ष के सदस्य हर बार गोवा का हवाला दे रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं उन्हें यूसीसी के चलते गोवा में उठे विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गोवा के अंदर देखने को मिला है कि यदि किसी विवाहित महिला का परिवार नहीं है और शादी के कुछ समय पश्चात उनके पति अगर उन्हें तलाक दे देते हैं, तो उस महिला के पास उसके पति की जायदाद में कोई हक नहीं बचता, जिस पर माननीय महोदय अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया। गोवा तो फिर भी भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जिसमें यूसीसी के चलते अगर इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भारत को विभिन्नताओं से पूर्ण देश है, यूसीसी को लाना संभव नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष विचार रखते हैं नव भारत के निर्माण की, परंतु बातें अभी भी गुलामी वाली। सत्ता पक्ष के सदस्य ने सती प्रथा की बात की, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सती प्रथा पर 1929 में विलियम लॉर्ड बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन रॉय के नर्म आग्रह पर पूरे भारत में रोक लगाई गई थी। Also, after independence, under penal code, if anyone exercise sati प्रथा directly or indirectly will be punished with death or imprisonment for life. माननीय महोदय, साथ ही साथ सत्ता पक्ष 3 तलाक का जोर शोरों से धारण दे रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि 3 तलाक पर कानून बने 2 साल से भी अधिक समय हो गया है, जिसके बाद 3 तलाक का प्रयोग नहीं देखा गया। इसलिए मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहूंगी कि अधूरा ज्ञान बांटकर संसद का कीमती समय जाया न करे। इतना ही नहीं माननीय महोदय, यह भी कह रहे हैं कि यूसीसी लोगों के हित का कानून है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, जो उन्हें सशक्त बनाएगा। माननीय महोदय, अगर सरकार महिलाओं के हित के बारे में इतना ही सोचती है, तो वीमेन रिजर्वेशन बिल को अभी तक क्यों नहीं पारित करवाया था, जो बिल महिलाओं को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। अंत में मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इस पर पूर्ण विचार करें और जिस बिल में इतनी खामियां हैं जो लोगों के हित में नहीं है, उसे पूर्ण रूप से खारिज किया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे इस लोकतंत्र के प्रतिष्ठित मंदिर में बोलने का अवसर दिया। आज मैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। आज मैं लोकसभा पटल पर समान नागरिक संहिता पर अपने विचार पेश करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की आज उस पर चर्चा की जा रही है, तो मैं सत्ता पक्ष को ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने से देश में सेक्युलरिज्म स्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दूसरा बात जो मैं आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बड़े-बड़े तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो मैं उनसे जरा ये पूछ लूं, इन पुल पर चलेगा कौन? जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें स्वयं ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या होगा। जो इसका समर्थन करे उन्हें स्वयं ये नहीं पता कि देश में इससे क्या बदलाव आएंगे, तो वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराकर अपनी सरकार दिखाना चाहते हैं।
दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, संविधान में असमान लोगों के लिए समान कानून की बात नहीं की गई है। संविधान में ये कहा गया है कि जो असमान लोग हैं उनके लिए अलग कानून होगा और जो समान लोग हैं उनके लिए कानून एक हो सकता है, लेकिन असमान लोगों के लिए अलग कानून होगा। देश में अलग अलग कानून इसलिए नहीं है कि हमारे धर्म अलग हैं, बल्कि इसलिए अलग है कि लोग अलग अलग राज्य में निवास करते हैं, इसलिए इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, यदि एक परिस्थिति में लोग हैं तो एक कानून हो सकता है, यदि अलग अलग परिस्थितियां हैं तो उस सिचुएशन में अलग अलग कानून ही होगा। मैं सत्ता पक्ष को बता दूं, हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक है, स्टेट्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक है, यानी 90% से ज्यादा हमारे जो सिविल मैटर्स हैं, नागरिक मामले हैं, उनमें पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन आप देख लीजिए हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है हमारी न्यायिक व्यवस्था के बारे में कि हमारा दीवानी का सिस्टम ऐसा है कि दीवाना बनाता है, पागल बनाता है। साल बीत जाते हैं अध्यक्ष महोदय, न्याय की गुहार लगाने वाला इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन न्याय उसको नहीं मिल पाता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, वहां पर देवी का वास नहीं होता। बात तो ऐसी बड़ी बड़ी की जाती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उन पर कितनी बुनियाद है ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं इनको ये बता दूं कि आप हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, उसमें कहां तक हमें सफलता मिली, कितनी हद तक हम देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने में कामयाब हुए, प्रॉपर्टी वितरण में उन्हें सशक्तिकरण मिला। आप ये देख लीजिए, आज भी अध्यक्ष महोदया इस देश की महिलाओं को संपत्ति के लिए मार दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, और ये सरकार कह रही है कि इसके आने से महिलाएं सशक्त होंगी। आज भी देश की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। यदि ऐसा केस है कि उनके पति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। मेरी समझ से नहीं, संपूर्ण देश की समझ से ये कानून बाहर है। विवाह, तलाक, वसीयत, गोद प्रक्रिया, ये सब एक व्यक्ति के निजी मामले हैं। मैं किससे शादी करूं, मैं किसे तलाक दूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसे दूं, मैं अपनी जमीन का वितरण किसे करूं, ये जानने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये जानने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी प्राइवेसी का मामला है, मेरी निजता का अधिकार संविधान के द्वारा मुझे दिया गया है। एंड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एक्ट। ये नागरिकों के प्राइवेसी के अधिनियम का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। सरकार को इसमें अधिकार नहीं है कि सरकार किसी को ये बताए कि आपको क्या करना चाहिए। सरकार को किसी निजी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 44 में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत तो है, राज्य उसे लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि राज्य इसे लागू करेगा। और यहाँ पर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवाला दिया गया एक माननीय सदस्य के द्वारा। हाँ, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन आज भी वहाँ पर जो फैसले किए जाते हैं, महिलाओं के जो फैसले किए जाते हैं, नागरिकों के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सब पुराने कॉलोनियल लॉ जो पोर्चुगीज लॉ है उसके तहत ही किए जाते हैं। मैं देख रहा था हमारी सरकार के लोग बड़ी शेर व शायरी करते हैं, बड़ा शायराना अंदाज महफिल जमाने को ये आए हैं संसद में। तो मैं इनको ये बता दूं, ये संसद है, यहाँ पर बात संविधान पर होगी, फैक्ट्स पर होगी, तथ्यों पर होगी। ये मुशायरों का घर नहीं है जो आप कुछ भी बोलते हैं तो सही साबित हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो बोलते हैं उस पर आप कितने कायम रहते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर इस देश के अल्पसंख्यकों का गला घोटने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं सभी सदस्यों से कि देश हित में इस कानून का विरोध करें। निंदक नेड़े राखिए आंगणे कुटी बधाई, बिन पानी साबन करे निर्मल करे सुधाई। अर्थात हमें विपक्ष के नाम पर राजनीति चमकाने वालों का कहा गया। ये पूर्ण रूप से ये हमारा इंसल्ट नहीं है, ये हमारी कोई बुराई नहीं है। हम तो यहाँ देश का हित चाहने के लिए बैठे हैं, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम तो जो किसी चीज में खामियां होगी उसको बताकर देश हित में फैसले सही करेंगे, और ये एक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय विशाल जी से निवेदन करूंगी कि अपने विचार। Thank you, Speaker Ma'am, for giving me this opportunity to speak on Uniform Civil Code. In India, a country with diverse languages and traditions, expecting people of diverse cultures and traditions to act upon same laws based on a uniform system is somewhat preposterous. The argument is based on the fact that India takes pride in integrity within diversity. For maintaining this diversity, we need to respect every minority community's laws and choices. That is what led this nation to live in peace for such a long time. The question that we need to ask ourselves is that whether violation of uniform laws are acceptable or not. It is an injustice to minority communities to impose majority views on them. A secular India is what the founding fathers promised when they formulated the Constitution, and that is what the minority is asking for. The government must respect the emotions of minority community and then think on whether to impose personal laws or not. The Constitution has chosen secularism as its vehicle to establish an egalitarian society. Secularism is part of fundamental law and basic structure of Indian political system. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मानसी जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। धन्यवाद स्पीकर साहिबा। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन जितनी बार भी मांग उठी है उतनी बार इसका विरोध हुआ है। मैं बात करना चाहूंगी समान नागरिक संहिता की हिमायती ये मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन महिलाओं के मामलों में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे 3 तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की। यह समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध कर रहे हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया है, इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू करना उनके मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक जो शरिया कानून है वो 1400 साल पुराना है, वह कुरान में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है। मुस्लिमों की चिंता है कि 6 दशक पहले उन्हें मेरी धार्मिक आजादियों से धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि रक्षाबंधन कई दशकों से चल रही है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय दीदी जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। Thank you, Speaker Madam, for giving me this opportunity. भारत में अनेक भाषाओं, परंपराओं और संस्कृति के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों से समान कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करना ही मुमकिन नहीं है। भारत जैसे विविधता वाले देश में विवाद जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए समान कानून बनाना संभव ही नहीं है और इस कानून से सभी समुदायों के लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं को भुलाकर नए कानून को अपनाना होगा, जो कि उन सभी के लिए बहुत कठिन कार्य होगा। भारत में लगभग 14.2% मुस्लिम लोग रहते हैं और यूसीसी को लागू करने के लिए गए कदमों को हमेशा उनके द्वारा विरोध का ही सामना करना पड़ा है। भारत में मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक है और उन पर हिंदुओं के विचारों को थोपना उनके साथ अन्याय होगा। भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है, परंतु यूसीसी उसका उल्लंघन करेगा। हमें स्वयं से यह प्रश्न करने की आवश्यकता है, क्या हमें पर्सनल लॉ का उल्लंघन स्वीकार्य है या नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, एक धर्मनिरपेक्ष भारत वही है जो संस्थापकों ने संविधान बनाते समय वादा किया था और माइनॉरिटीज उसी की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुकुल जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार रखें। थैंक यू मैम स्पीकर। मैं आपको और सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार शुरुआत से ही, जब से हमारा देश हुआ आजाद हुआ, तब से एक ही गाना गाती आ रही है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अब वह यूसीसी को लागू कर क्या साबित करना चाहती है। अगर वह देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करती है
तो देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिकता को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनेक धर्मों जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर हम उन्हें एक ही धर्म में बांध देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। सभी लोग अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि हमें देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब विधेयक पर विपक्ष के सदस्य अपने सवाल पूछेंगे। संबंधित मंत्रियों को उत्तर देना अनिवार्य है। अब मैं माननीय तेजस जी से निवेदन करती हूँ वे अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरा सवाल गृह मंत्री जी से है। बच्चों वाला सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वे इसका जवाब दे पाए, ऐसे ईश्वर उनको शक्ति दे। मेरा सवाल सीधा सा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में एक धर्म के भीतर ही एक कानून नहीं है, यानी हमें एक सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाना हो तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी तो एक धर्म के भीतर ही कानून नहीं है। उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो मुसलमानों के लिए केरला में कानून अलग है, महाराष्ट्र में उनके लिए कानून अलग है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के लिए कानून अलग है। यानी अब तक तो सभी धर्मों के लिए एक कानून अंदर ही अंदर नहीं है, तो आप सभी धर्मों पर एक कानून लागू कर देंगे, ये तो थोपने जैसा है, इसमें कैसी मानसिकता। अध्यक्ष महोदय, अभी तेजस जी ने यह बोला कि यह बच्चों वाला सवाल है, तो मैं पूछना चाहूंगा कितने तेजस्वी लोग हैं जो ये बच्चों वाला सवाल संसद में पूछ रहे हैं, और इसका जवाब हम समझदार वाला ही देंगे, बच्चों वाला नहीं, जबकि हमें पता है कि इनके समझ में कम आ सकता है। तो मैं इनको साफ एकदम सुंदर भाषा में बताऊंगा और आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि जब एक धर्म के अंदर एक कानून है तो अलग अलग धर्म में एक कानून कैसे बन सकता है, तो मैं पूछता हूँ धर्मों का क्या काम है? धर्मों का काम समाज को आगे ले जाना है या फिर धर्मों का काम समाज के विकास के आगे आना है? और अगर धर्मों का काम समाज को आगे लेकर जाना है तो फिर उसमें नवीकरण की दिक्कत क्यों? अगर धर्मों का काम समाज को आगे ले जाना है तो उनमें नवीकरण होना ही चाहिए। और जैसे कि इन्होंने अभी पूछा कि यह कानून सभी धर्मों पर थोपा जा रहा है, तो मुझे लगता है शायद विपक्ष विधेयक को पढ़ना भूल गए, क्योंकि इस विधेयक का नाम है समान नागरिक संहिता, ना कि समान धर्म संहिता। और जैसा कि इनकी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सत्ता पक्ष अपनी सारी पंक्तियां सुनाकर अपनी चीजें ना बताए, तो मैं पूछना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता की पहली 4 पंक्तियां क्या थी और आखिरी की 4 पंक्तियां क्या थी? मैं बताऊं या आप उनसे अपने आप सुनना चाहेंगे? और ये विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि सरकार का मैटर नहीं है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। तो मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे तो ये लोग 70 शादियां कर लेंगे और कहेंगे कि ये सरकार का मैटर ही नहीं है, और ये क्या सड़क से बच्चे उठा लेंगे और कहेंगे तो हमारे बच्चे, और कहेंगे कि सरकार को इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों सरकार नहीं बोलेगी इसके अंदर? और महोदय, अगर अभी भी इस विधेयक पर किसी को शक है तो मैं बताना चाहता हूँ कि वे कुछ नहीं करना चाहते, समाज के आंखों पर समुदाय का चश्मा पहनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, देश का हित नहीं चाहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा महोदय, अगर यह देश श्रेष्ठ देश बनना चाहता है तो एक देश एक कानून भी जरूरी है। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुशाल जी से निवेदन करूंगी वे अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद स्पीकर महोदया। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से सीधा सा है। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई, डॉलर के मुकाबले रुपये 80 पहुंच चुका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी नीचे है। ऐसे में इन जरूरी मुद्दों को छोड़कर यूसीसी जैसे नाजुक मुद्दे पर कानून क्यों बनाया जा रहा है, जिससे न केवल अनेकों धर्मों व जातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी बल्कि देश में महंगाई भी बढ़ेगी? माननीय सांसद महोदय ने जो सवाल पूछा है, मैं इस सवाल के जवाब में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगी, यदि बात भारत की अर्थव्यवस्था की जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 8.7% रहा है, जो पिछले वर्ष से काफी बेहतर है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया है।
यह कानून समानता के लिए बनाया गया है। यदि समाज में समानता होगी तभी देश का विकास संभव है। देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। जहां तक बात धर्म व जातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देने की अपेक्षा करता है। हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, शरिया एक्ट आर unnecessary complication. Uniform civil code embodies justice and there should be no compromise on it. One nation should have one civil code. It is now 70 years since the constitution came into force. It is a high time there for a decisive step towards a common civil code. If not now, then when? हमारे बुद्धिजीवी सांसद जी ने यह कहा कि 2018 में, गौर फरमाइएगा, 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वह यह भूल गए हैं कि 2020 में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यही सही वक्त है यूसीसी को लाने का। हमारी एक और सांसद जी जो हैं, जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन का जिक्र किया, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आई थी। उसका बहिष्कार करने वाले आप ही थे, जिस कारण वह आज तक पारित नहीं हो पाया। आप हमें बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी कहते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि बुद्धिजीवी यानी बुद्ध पर जीवन व्यय करने वाले, यानी भारतीय संस्कृति की पालना करना। इसलिए मैं मानती हूँ बुद्धिजीवी एमपी को मेरा उत्तर पसंद आया। माननीय विपक्ष के सांसद जी, पुल बांधे जाएंगे तारीखों के, क्योंकि हमारा कानून निराला है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, देश सुन रहा है, देश देख रहा है। न्यायालय तक को नहीं बख्शते, हम नहीं घुसते किसी के निजी जीवन या आपकी प्राइवेसी। हम तो केवल बचाना चाहते हैं महिलाओं का मान सम्मान, ताकि स्वर्ग का नाम रहे भारत में बिना रुके एक नाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय नंदू जी से निवेदन करूंगी कि अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद माननीय महोदय। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के जवाब के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं तो प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष से कहना चाहती हूँ कि रहने दीजिएगा, आपसे अच्छी राजनीति तो विपक्ष ही कर लेता है। प्रधानमंत्री ने शायद विपक्ष की बातों को गौर से नहीं सुना, लेकिन अब गौर फरमाइएगा कि आधा अधूरा ज्ञान बांटकर संसद का कीमती समय जाया न करें। For your kind information, Women Reservation Bill को 2014-2019 में आपकी सरकार, गौर फरमाइए, आपकी सरकार होते हुए लोकसभा में लाया था, लेकिन आपकी सरकार ने इस पर अब तक वोटिंग नहीं। इसलिए अपने झूठे दाव पे विपक्ष पर मत चलाइएगा। आप अपना झूठा राजनीतिक चश्मा जनता को पहना सकते हैं, विपक्ष को नहीं। अब मैं सत्ता पक्ष से अपना सवाल रखना चाहूंगी कि अब तक आपने बहुत सहजता से यूसीसी के फायदों को गिनवाया। अगर यूसीसी इतना ही फायदेमंद है तो उसे फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा गया, क्यों उसे आज भी डीपीएसपी में रखा गया? धन्यवाद। Thank you, Speaker Ma'am, for giving me the chance to answer this question on UCC. UCC. What does the Constitution states about the UCC Uniform Civil Code? In Article 44 of the Constitution, it specifies the UCC. The state shall endeavor to secure the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. The Constitution thus very clear that unless a uniform civil code is followed, integrity cannot be imbibed. However, the fact is that it is only a directive principle laid down in the Constitution, not a fundamental right. Although Article 37 of the Constitution itself makes clear that directive principles shall not be enforceable by any court unless they are fundamental in the governance of a country. But as fundamental rights are limited scopes, DPSPs do not have any limited scope. The main reason behind the inclusion of Uniform Civil Code in DPSPs is that as fundamental right protects the rights of individuals and works at a micro level, DPSPs protects the rights of citizens and works at macro level, as this UCC was to be implemented on the whole country to integrate all the citizens under a uniformity. Also, DPSP have some limitations
and for this further amendments will be made to make UCC a fundamental right. But according to the situation of that time when the bill was introduced, there were many problems in making UCC a fundamental right, and that's why Dr. B.R. Ambedkar had to give this UCC a non-justiciable clause. Thank you, Speaker. धन्यवाद महात्मा। अब मैं माननीय विशाल जी से निवेदन करूंगी वे अपना प्रश्न रखें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसी बात पे मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश ग्लोबल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में दुनिया में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे है। और ये इन रिपोर्टों को ऑपोजिशन का फेक प्रोपेगेंडा बता के खारिज कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले मानना तो सीखिए, सुधार तो बाद में भी देखा जाएगा। अब मेरा सवाल कानून मंत्री जी से ये है कि हमारे देश में 50 मुस्लिम विष्णु जी के 10 अवतारों में विश्वास रखते हैं। हिंदुओं के लिए तो कानून बदल गए, लेकिन अभी भी वे शास्त्रीय हिंदू कानून से गवर्न हो रहे हैं, तो उनके लिए आप यूसीसी में क्या करेंगे? उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहता हूँ कि अगर मेरा उत्तर समय से ऊपर चला जाए तो कृपया मुझे बीच में टोकिएगा। तो मैं अपना उत्तर प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले महोदय ने कहा कि हमारा देश नेपाल, बांग्लादेश न जाने किन किन देशों से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे। तो जरा आप माइग्रेशन का भी डेटा देख लीजिए। आपकी ही अपोजिशन, आपके ही पार्टी वाले और आपके ही रूल्ड स्टेट से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुसते हैं और वो हमारे अनाज को लेते हैं। हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है पैसों के लिए नहीं, जनता के, दुनिया के कल्याण के लिए ग्रेन को बाहर भेजती है। न जाने अफ्रीका में, न जाने एशिया में भी और कोरिया में भी हमने अनाज को भेजा है। उन लोगों को यहाँ के अनाज में बड़ा स्वाद आता है। अब मैं अपना उत्तर प्रारंभ करता हूँ। कार्य सदन का है बातचीत कर मसले पर आना। आपने पूछा यह प्रश्न हुआ मेरा मन प्रश्न। मैं कहता हूँ होगा कानून एक जब तक नहीं होगा किसी का धर्म विहीन। अगर कोई आएगी बाधा या मसलन तो उसको देखा जाएगा और समझा जाएगा तथा उसको छूट हम दे देंगे, पर वह होगी रीजनेबल, नहीं तो छूट भी देना कोई बड़ी बात नहीं। लगता है आपको कविता समझ आ रही होगी। और केवल बदला जाएगा तो 4 सेक्शन को महोदया। इसके बाद कुछ और एमपीज ने भी अपने सवाल पूछे। प्रधानमंत्री को मैं प्रोटेक्टेड करते हुए उन सवालों का भी जवाब देता हूँ। आप हमें बुद्धिजीवी या बुद्धजीवी कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे सारे एमपी बुद्धिजीवी हैं और आपका आभार प्रकट करता हूँ शासन महोदय कि आपने हमें कहा, क्योंकि बुद्धिजीवी यानी बुद्ध पर जीवन व्यय करने वाले, यानी भारतीय संस्कृति की पालना करने वाले। इसलिए मैं मानता हूँ आप अबुद्धिजीवी एमपी को उत्तर पसंद आया होगा। और अब ये तीसरा सवाल मैं नहीं जानता किसने पूछा था। A country is a country of minorities. Whether you see only through religion, then it is wrong. You should see it through all measures from language to religion. हमारे देश में 20,000 से भी अधिक भाषाएं हैं। तो एक भाषा के लिए पर्सनल लॉ, न जाने लाखों हम धर्म बना ले तो हर धर्म के लिए क्या पर्सनल लॉ होगा? ये कोई बात भी बना? इसलिए हमारी सरकार सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, जिसके अंतर्गत जो भी अपना धर्म बनाएगा उसका पर्सनल लॉ होगा, लेकिन जिस प्रिंसिपल पर वो पर्सनल लॉ बनेगा वो सबके लिए सिमिलर होंगे। कृपया आप लॉ और कोड में डिफरेंस करना सीखें। Our country is a country of minorities, ये बात भी आपको समझ आ रही होगी। अगर इतनी सारी भाषाएं और इतने सारे धर्म होंगे तो इससे ह्यूज प्रॉब्लम होगी। So it is necessary to create a uniform law for all. That is why UCC is important. I am again saying not a single law but different principles of personal laws will be created. ट्रिपल तलाक को बड़ा चढ़ाकर बाबा क्या आप बोलते हैं? बोलकर मेरा मन प्रश्न हो गया। लगता है मुझे भी ओपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिपल तलाक से लगता है आपका वोट बैंक गिर रहा है। जो मुस्लिम महिलाएं पहले आपको मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट करती थी, आज वो हमारे होम मिनिस्टर को वोट करती है। अभी कविता के माध्यम से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देता हूं। हमारे देश में तो जन्मे राणा जैसे लोग, हिमालय और चेतक जैसे घोड़े,
हमारी आदत है खाइयों के ऊपर से कूद कर उन खाइयों पर पुल बनाना है। आज समाज में फिर एक पुल यूसीसी के रूप में बनाते हैं तो नेता ऐसे भाषण लेकर उनको क्यों गिराते हैं, लेकिन हम बुराइयां सहन कर लेंगे, लेकिन देश के लिए बुरा नहीं सहेंगे। वोटिंग विल हैपन when MPs will sit quietly. Leader of opposition in 2019 and 2014 don't want to lose his seat to a woman, but a miserable condition in the opposition is there. Please be focused on your करनी एवं कथनी। नानी पालकी वाला का अपमान करके opposition MPs को शर्म नहीं आई। नानी पालकी वाला तो हमारे लिए मान है। आपने कैसे कर दिया उनका अपमान। आप कैसे कहते हैं कि विधि में आस्था रखने वाले 50 साल तक कोर्ट में काम करने वाले कैसे अपनी आस्था का बहिष्कार करते हैं। मैं पूछता नहीं कहता हूँ, आजाद विचार आज संसद में पेश हुए हैं, आप उनको गुलाम कहते हैं तो जरा अपने स्त्री प्रथा के बयानों को भी ध्यान करिए। विचार विमर्श हमारा आज समाप्त हुआ, जनता का विरोध बाहर आपको सहन करना होगा। Constitution says to treat equals with equality, but unequal should be treated differently. लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने डिफरेंटली पढ़ नहीं पढ़ा, उसकी जगह अनइक्वल पढ़ा, और एक पंक्ति वो पढ़ना भूल गए। But you haven't read leader of opposition that unequal should be constructed into mainstream through proliferation. Your government was ruling for 65 years, and you brought those laws that you were mentioning in your speech that why are धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय निधि जी से निवेदन करते हुए अपना प्रश्न रखूं। धन्यवाद मैडम स्पीकर। ये यूसीसी बिल लाना चाहते हैं और बार-बार ये बात कर रहे हैं कि हम विमेन के राइट को सेफगार्ड करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, पहले विमेन को तो सेफगार्ड कर ले। आजकल इतने सारे केसेस, लड़कियों को बाहर निकलते वक्त भी डर लगता है, कहीं पे रेप केसेस, कहीं पे एक्सीडेंट, जाने क्या कहिए। डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके राइट को सेफगार्ड करने की बात करें, पहले उन्हें देखें, राइट की बात तो बाद में आएगी। अब मेरा प्रश्न सुनिए। हमारे देश में अभी भी पॉलीगैमी की प्रथा है और न जाने कितनी प्रथाएं हैं, न केवल मुसलमान में बल्कि हिंदू और ट्राइबल्स में भी। तो जब उन्हें अपने कल्चर को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार तो उनके मैटर में इंटरफेयर कर रही है। वो उसके राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रही है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इनकी टिप्पणी का उत्तर देता हूँ। आपने पूछा नारी को सम्मान नहीं मिला, नारी को सुरक्षा नहीं मिली, तो ये बिल क्या हम आपके चाचा के लिए लेके आ रहे हैं? नारियों के लिए तो ला रहे हैं। और अब इनका उत्तर देता हूँ। इन्होंने पूछा कि पॉलीगैमी अभी भी हमारे भारत में प्रचलित है, तो हम भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति अपनी सम्मान रखें और भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाएं, ना कि किसी व्यक्तिगत कानून के अनुरूप। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि बहुविवाह एक निजी मामला है, उसके अंदर सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को नहीं लगता किसी भी शिक्षित व्यक्ति को यह पूछने की जरूरत हो सकती है कि बहुविवाह में क्या गलत है, और ऊपर से एक नारी होकर, शिक्षित व्यक्ति होकर यह पूछने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता था कि आपको होनी चाहिए थी। और आपने पूछा कि बहुविवाह एक निजी मामला है, तो मैं पूछता हूँ कि बहुविवाह निजी मामला कैसे? आप कहते हैं कि सरकार उसके अंदर दखल नहीं दे सकती। सरकार किन मामलों में दखल दे सकती है? जब किसी भी व्यक्ति के राइट्स वायलेट हुए, और आपने शायद एक राइट तो नहीं पढ़ा, बहुत सारे राइट पढ़ के, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप एक राइट पढ़ना भूल गए, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ, जो कि उन मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता जो बहुविवाह के अंदर है। वो बहुविवाह के अंदर ना उन्हें सामाजिक कार्य, ना उन्हें आर्थिक कार्य, ना उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, कुछ नहीं मिल पाता, और आप कह रही हैं कि बहुविवाह के अंदर सरकार क्यों दखल दे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनसंख्या के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, उसके बारे में भी बताऊं, लेकिन मुझे लगता है आपके लीडर जब बच्चों जैसे सवाल पूछ सकते हैं तो बता भी देना चाहिए। 135 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि 2030 में 150 करोड़ हो जाएगी, और बहुविवाह को नहीं रोका तो जल्द से जल्द 200 करोड़ भी दूर नहीं रहेंगे। और बहुविवाह नारियों और औरतों के प्रति
प्रति अत्याचार कैसे हो सकता है? एक सर्वे के माध्यम से 90% मुस्लिम महिलाएं बहु विवाह का बहिष्कार करती हैं। और मैं बताना चाहूंगा महोदय, एक माननीय सांसद ने बोला था कि ये लोग पंक्तियां क्यों बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको हमारी कला से दिक्कत है या हमारी कुर्सियों से ज्यादा जलन हो रही है? और माननीय विपक्षी नेता जी ने भी यह कहा था कि आप लोग आप लोग पंक्तियां बता रहे हैं, तथ्य नहीं बता रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जो लोग चिल्लाकर अपनी बात बता रहे हैं वे तथ्यों के फाउंडेशन पर नहीं, सिर्फ झूठ के फाउंडेशन पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा महोदय कि जैसा कि इन्होंने बताया कि यह मामला निजी मामला है, तो मैं बताता हूँ कि निजी मामला सिर्फ निजी तब तक रहता है जब देश के विकास के आड़े ना आए। जिस क्षण से वह देश के विकास के आड़े आता है वह एक राष्ट्र मुद्दा बन जाता है। और अंत में एक चीज और कहूंगा महोदय, तो मन को बदल दो, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है। सोच को बदलो, सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, नजारा बदल जाता है। तो माननीय सदस्य, हमें कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि विपक्ष भी इसमें साथ दे, लेकिन मैं इनसे कोई आत्मरक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, बच्चों जैसे सवाल तो बच्चों जैसी बुद्धि भी होगी। अब सदन में मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। सभी सदस्य अपना स्थान रखें। मैं डिप्टी महोदया से निवेदन करूंगी वे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ करें। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में हाँ करें। हाँ। जो सदस्य इस विधेयक के विरोध में ना करें। ना। After counting the vote, it is here reported that the UCC bill has voted by 13 MPs and abused by 10 MPs. मेरे विचार में ये फैसला हाँ वालों के पक्ष में है। यह बिल राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब लोकसभा से पारित किया जाएगा। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे समस्त सदस्य को कार्रवाई सफल बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त करें। इस सदन की कार्यवाही को सफल बनाने के लिए मैं सभी सांसदों, सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इस संसद की कार्यवाही को सफल बनाने के लिए मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।